نحمدہ و نصلی علیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر سید اقرال الحسن بامقابلہ حق عطیہ حسین بحث مباحثہ چل رہا ہے۔ تو اس سے بہت بڑا ملک کے اندر ایک فتنہ شروع ہو گیا ہے۔ سید اقرال الحسن یہ بھی کوئی عالم یا کوئی مفتی نہیں ہے، ان کو بھی دین کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو جو دعویٰ کر رہے ہیں پیر حق عطیہ حسین، اور بعض لوگ پیر اعظم سرکار پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ یہ جو ان سے ہاتھوں سے جو کام ہو رہے ہیں یہ شعبدہ بازی ہے، فراڈ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تمام مسالک علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام اولیاء کرام سے ایسے کسی عمل کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر کسی نیک بندے کے ہاتھوں کوئی خرق عادت کام سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور حوصلہ افزائی ہے۔ اگر کسی بدعقیدہ شخص کے ہاتھوں کو خرق عادت کام ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل یا پھر جنات کی کارستانی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، اور ان کا جو عمل ہے یہ تو بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کے قول سے، نہ بزرگان دین کے کسی عمل سے۔ تو اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ان کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے یہ جنات کی مدد سے ہو رہا ہے۔ جنات سے ہم کوئی جائز کام تو لے سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کام لینا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کچھ لوگ جنات کی مدد طلب کرتے تھے اور جنات کے تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے جنات سے متعلق سورہ الانعام یہ 28واں پارہ ہے، تو 7 نمبر آیت ہے۔ اور جس دن ہم ان سب جنوں انس کو اکٹھا کر کے کہیں گے کہ اے گروہ جن، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیا، اور ان کے ساتھی انسان کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے نفع حاصل کیا اور بالآخر ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، مگر جسے اللہ بچانا چاہے۔ یہ جو آخر میں ہے نا کہ مگر جسے اللہ بچانا چاہے، یہ نرمی بھی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جنات سے جائز خدمت لیتے ہیں، ان کو دعوت دین دیتے ہیں، اور صرف معلومات جنات کے ذریعے، وہ بھی کسی ایسا مریض جس میں جنات کی حاضری ہو، پہلے اس کے اندر کسی بھی جن کو داخل کر کے معلومات لی جا سکتی ہیں، لیکن اس سے آگے جو کام ہے وہ نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر کسی عامل کے پاس تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے،
وہ कुरान सुन्नत की रोशनी में तिलावत कुरान पाक करे और जिन्नात को हाजिर करे और निकाले। तो मस्जिद नबी के इमाम अबू बकर अल-जज़ारी लिखते हैं कि लाखों इंसानों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर और मुख्तलिफ़ औक़ात में अजीब व गरीब शैतानी हवाल देखे हैं। बाज़ इंसानों के पास शैतान खाने पीने की मुख्तलिफ़ चीज़ें लाता है और मज़ीद ये कि बाज़ के काम करवाता है और उन्हें पोशीदा बातें बताता है और खुफिया अमूर से आगाह करता है। और वसाक़ात ऐसा हुआ कि अपने साथी पर हथियार न चलने दिया। और ऐसे लोग भी पाए गए हैं जिनके पास शैतान एक नेक इंसान की शक्ल और सूरत में आया जिससे उस शख्स ने मदद तलब की थी। इन बातों से शयातीन का मकसद इसे गुमराह करना और शिर्क व मासियत इलाही पर आमादा करना होता है। और बाद लोगों को शयातीन दूर दराज इलाकों में ले गए और दूर से आदमियों को ले आए। नीज़ इस तरह के दीगर अहवाल जिनके करने पर शयातीन और सरकश जिन कुदरत रखते हैं, ये शैतानी अहवाल उस वक्त हासिल होते हैं जब इंसान शर व फसाद और अल्लाह ताला के इनकार और नाफरमानी में बदमस्त हो जाता है और इसमें ईमान, तकवा और नेकी नहीं रहती। ऐसी सूरत में इसकी रूह खबीस शैतानी अरवाह के साथ मुतहद हो जाती है और दोनों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते कायम हो जाते हैं। फिर वो एक दूसरे की मदद करते हैं और मालूमात का तबादला करते रहते हैं। इसीलिए क़यामत के दिन उन्हें कहा जाएगा, ऐ जिन्नों की जमात, तुमने इंसानों से बहुत फ़ायदा हासिल किया। और इनके इंसानी दोस्त कहेंगे कि हमारे रब, हमने एक दूसरे से बहुत फ़ायदे हासिल किए। रवानी औलिया की करामत और शैतानी अहवाल में फ़र्क ये है कि अगर खर की आदत बात एक मुत्तकी परहेज़गार और अल्लाह ताला की शरीयत पर चलने वाले के हाथों सरजद हो तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़ और हिम्मत अफजाई है। और अगर ऐसा काम किसी खबीस इंसान, अल्लाह की नाफरमानी और कुफ्र व फसाद में मुनहक शख्स के हाथों पर ज़हर हो रहा है तो ये इस्तदराज यानी मासियत में ढील देने के कबील है या फिर शयातीन की कार फरमाई है और इससे इनकी मदद और ताबन हासिल है। तो ये जो दावा करते हैं ना पीर हक खतीब के मुझ पे अल्लाह का जिक्र आसान है जे और पीर अजमत सरकार के ये बिल्कुल झूठ है, कोई करामत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ ये अमल है। हाँ, जिन्नात की मदद से ये लोग करते हैं, बाज़ लोगों को नहीं पता, उलमा कराम, मुफ्तियान कराम को भी नहीं पता। वो समझते हैं कि शायद इनके हाथों से जो खर की आदत खिलाफ आदत काम हो रहे हैं, ये हकीकत है। जिन्नात हाज़िर भी होते हैं और जिन्नात निकल भी जाते हैं। ऐसे मरीज़ जिन पर जिन्नात का साया है ना, वो उनको शिफा मिलती है जहाँ से, ये हकीकत है कि जहाँ से शिफा मिलती है। लेकिन जो तरीक़ाकार है वो कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ है। ये इनकी कोई करामत नहीं है, ये सिर्फ़ जिन्नात के ज़रिए ये काम करते हैं। क्योंकि जिन्नात जो होते हैं ना, जब दरबारों पे लाखों ये आस्थाने जितने भी हैं लाखों के तादाद से जहाँ जिन्नात होते हैं, इनमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। तो ये देखो ना, पीर अजमत सरकार ये तो बिल्कुल एलानिया ऐसे जिन्नात को भर्ती करते हैं जैसे हम फ़ौज के अंदर ना लोगों को भर्ती करते हैं। उसका जिनका पहले पूरा टेस्ट लेते हैं कि ये क्या आप में ताकत कितनी है, आप क्या काम कर सकते हैं। और ये फिर इनका वादा होता है जिनके साथ कि आप क्या खाएंगे, तो उसकी जो शराइत है वो भी मानते हैं, फिर उसको अपने पास रख लेते हैं। इसी तरह ये तो एलानिया कहते हैं ना पीर अजमत सरकार, लेकिन जो पीर हक खतीब है ये ज़ाहिर नहीं करता, ये भी जिन्नात के ज़रिए ही काम करता है। कोई तकवा, कोई परहेज़गारी, कोई बात नहीं है, कोई करामत नहीं है, सिर्फ़ जिन्नात के ज़रिए ये सारा काम होता है। तो पीर अजमत तो एलानिया कहता है ना कि जिन्नात को भर्ती करता है, उनको रखता है, ताकतवर जिन्नों को ये नहीं जाने देता। तो जिन्नात मैं ये वजाहत भी कर दूँ कि जितने भी पीर अजमत सरकार या पीर
हक खतीब हुसैन के पास लोग आते हैं। जब ये दरबार के आस्थाने के अंदर दाखिल होते हैं, चाहे वो आस्थाना पीर अजमत सरकार का हो, चाहे पीर हक खतीब हुसैन का हो, तो जिन्नात जो है ना दरबार पे, वो उनको नज़र तो नहीं आते लोगों को, वो जिन्नात को इतना मारते हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर आते हैं, और रात को भी दिन को भी। तो पीर अजमत तो कहता है ना सामने पूरी दुनिया के कि बाबा जी आओ, इसको जिस्म के अंदर दाखिल करो और इसको मारो। सारी दुनिया देखती है। तो इसे यही तरीक़ाकार पीर हक खतीब हुसैन का है। वो ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन वो भी जिन्नात के ज़रिए से सारा काम करता है। लेकिन एक चीज़ है कि ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये जिन्नात के ज़रिए कोई लोगों को तकलीफ़ भी देते हैं, लेकिन ये लोगों का फ़ायदा करते हैं। लेकिन ये कोई करामत नहीं है, ये खिलाफ शरीयत है, लेकिन इससे लोगों को फ़ायदा भी होता है। जो लोग कहते हैं ना कि ये मतलब ड्रामा है या फ्रॉड है, जैसे ये कह रहा है अपने इकरारुल हसन, तो ये झूठ बोलता है, ये झूठा है। हकीकत है कि जिन्नात इधर हाज़िर होते हैं। जिस जिस्म के अंदर जिन होता है ना, ये जो दरबार के अंदर जिन्नात हैं, जो उनको नज़र तो नहीं आते, यही जिन्नात को निकालते हैं। क्योंकि ये तो इनको कुरान भी नहीं आता, इनको तो सूरत फातिहा नहीं आती, कुरान कहाँ आएगा। तो जिन्नात ही सारा काम करते हैं, और जिन्नात के साथ फिर इनका मादा होता है। पीर हक खतीब जो खुफिया मादा है, जो पीर अजमत है, तो वो इलानिया मतलब कहता है कि जिन्नात को रहायश भी खाना भी देता है, और वहाँ कोई तमीज़ नहीं है पीर अजमत के पास कि ये मुस्लिम है गैर मुस्लिम है। लेकिन जिन ताकतवर होना चाहिए उसको भर्ती कर लेते हैं, और फिर ये मिल के काम करते हैं। लेकिन इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये करामत कहना ये बहुत बड़ा झूठ है, कोई करामत नहीं है। तो ये जिन्नात को भी फ़ायदा पहुंच रहा है, इनको भी फ़ायदा पहुंच रहा है। जिन्नात को रहायश खाना मिलता है, और इनको ये लोग इन्होंने गले रखे हुए हैं आस्थानों पे, वहाँ ये ऐलान करते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लंगर में पैसे डाल के जाएँ। इस तरह इनकी भी आमदनी है, 4-5 लाख रुपया इनके खर्चे भी हैं। ये जो अगर ये पैसे कमा रहे हैं ना, तो इनके लाखों में खर्चे हैं पीर अजमत के और इसके पीर हक खतीब के। लेकिन ये मैंने कुरान सुन्नत की रोशनी में बयान किया है कि ये इनकी कोई करामत नहीं है, ये सिर्फ जिन्नात के ज़रिए काम करते हैं, लेकिन इससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर ये खुफिया तौर पे लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ये जो हम दम करते हैं ना कुरान सुन्नत के मुताबिक, ये हम इन पे जब कोई वीडियो या कोई ऐसी बात करते हैं, तो फिर इनके साथ काम करने वाले जिन्नात हम पे भी हमला करते हैं। अगर वो हमला जो ये हम पर जिन्नात को भेजते हैं लोग देख लें तो परेशान हो जाए, बहुत खौफनाक होता है। क्योंकि ये तनकीद नहीं बर्दाश्त करते, ये कहते हैं हम छुपी हुई मखलूक है, हमें ज़ाहिर न करो। लेकिन इस वीडियो में मैंने सारा ये ज़ाहिर कर दिया है। ये जो है इकरार और हसन है, अगर तो काम इल्मी की बुनियाद पे ये कर रहा है बहस मुआ से, तो अल्लाह से माफ़ करे। अगर तो जानबूझ के कर रहा है तो बदनाम कर रहा है इन लोगों को। तो ये खिलाफ शरीयत तो कह सकते हैं काम, लेकिन ये कहना कि ये फ्रॉड है, ये जो चैन वगैरह या मुंह के अंदर से सुइयाँ जो कील वगैरह निकलते हैं, ये हकीकत है, समझाई। तो ये बिल्कुल हकीकत है, और ये कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन ये चूँकि खिलाफ शरीयत है, इसलिए हम इसकी हिमायत नहीं कर सकते कि ये इनका अमल कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ है, बुज़ुर्गान दीन की तालीमात के ख़िलाफ़ है, ये हम ज़रूर कहेंगे। लेकिन जो कुछ इनके हाथों से सर दर्द हो रहा है ये हकीकत है। और मरीज़ों को देखो ना, एक जिन ने मरीज़ को पकड़ा हुआ है,
جو ادھر آستانوں کے اندر جن ہے وہ نظر تو نہیں نہ آتے، جب یہ سر پکڑ کے ایسے کھینچتا ہے نا تو جنات اس مریض کے اندر جو جن ہوتا ہے اس کو وہ دھکا دیتے ہیں، وہ نکل جاتا ہے جن، حقیقت ہے نکلتے ہیں۔ میں 19 سال سے الحمدللہ اس فیلڈ میں ہوں، میں ساری جنات کی دنیا کے متعلق پوری معلومات رکھتا ہوں، تو اس لیے یہ سید اقرار الحسن یہ اس کو نہیں ہے علم جنات کی دنیا کا، ان کو بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں لوگ اگر جاتے ہیں ان کے پاس تو بہرحال ہمارا ان کا عقائد کا بہت فرق ہے، کیونکہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مسلک کے ساتھ وابستہ ہوں، تو اور ان کے استاد تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طریقہ وہ قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو دم کیا کرتے تھے اور جنات کو نکالا کرتے تھے، میں اس طریقے سے الحمدللہ کر رہا ہوں۔ وہ بندے